اس بار پھر آپ کے سامنے بابو اختر احمد انصاری صاحب کو پیش کر رہا ہوں، کچھ سوالات کے ساتھ کچھ جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بابو احمد اختر صاحب، بابو اختر انصاری صاحب، بابو بھائی صاحب، اب آپ یہ بتائیے کہ اب تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ہر جگہ اقوام تو اور بھی ہیں مسلمین میں، لیکن صرف تعصب کا نشانہ انصاری حضرات کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ کیا سبب رہا ہے؟ تاریخ کی روشنی میں بتائیں۔ اس کے سبب کچھ بہت سے وجوہات ہیں جو میں آج بتانا چاہتا ہوں آپ کی نظر میں۔ دوستوں اور ساتھیوں، عزیزان مکرم، خاص بات یہ ہے آج جب تک ہم یاد ماضی کی باتیں سامنے نہ رکھیں گے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا اسی یاد ماضی کی سامنے رکھتے ہوئے کچھ روشنی کے سبق آپ کو دکھائے جائیں گے تاکہ آپ کو عبرت حاصل ہو اور زمانے سے ہوش میں رہیں تاکہ آپ کا معاملہ بڑھیا ہوتا رہے۔ یہ اس زمانے کی خون کے آنسو رلانے والی داستان ہے جب مغلیہ حکومت کے زوال کے بعد انگریزی حکومت کا دور شروع ہو چکا تھا۔ تمام تر اشیاء خوردنی اور تجارتی سامان حکومت برطانیہ سے ہندوستان میں آ کر فروخت ہوتا تھا۔ یہ تمام سامان ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان آتا تھا، جس کی اجازت مغلیہ حکومت نے جگہ جگہ ہندوستانی منڈیاں قائم کر کے اجازت دے دی تھی، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ ہندوستان کی ساری تجارت انگریزوں کے ہاتھ آ چکی تھی۔ جس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس کو انگریز اچھی طرح لوٹ رہا تھا۔ اس کی اس تجارت کا سب سے بڑا اثر خاص طور پر ہندوستان کی بنکروں یعنی کپڑا بننے والے نور بافوں پر پڑا، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ برطانیہ سے جو سودیشی کپڑا ہندوستان میں تجارت کے لیے آتا تھا وہ ہندوستانی کپڑے کے مقابلے میں فیل ہو جاتا تھا، کیونکہ یہاں کا بنکر جو کپڑا تیار کرتا تھا وہ بہت عمدہ تھا۔ مثال کے لیے ڈھاکے کی ململ کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ کپڑے کا پورا تھان یا سلائی کے ہول میں پار ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف بنارس کا تیار کیا ہوا بنارسی کپڑا، بنارسی ریشمی ساڑیاں آج تک مشہور ہیں، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ بنکروں کی اس دستکاری اور ہنر کی وجہ سے حاکم وقت برطانیہ حکومت کو نقصان کا منہ دیکھنا پڑتا تھا، جس کی جلن اور انتقام نے اس نے غریب نور بافوں بنکروں کے معمولی جرم میں ہاتھ کے انگوٹھے کٹوانے شروع کر دیے تھے تاکہ یہ لوگ عمدہ کپڑا تیار نہ کر سکیں اور یہ لوگ تمام صلاحیت سے محروم ہو جائیں۔ اتنا ہی نہیں، انگریزی حکومت نے ایک سرکاری سرکولر یعنی حکم نامہ جاری کر کے جس میں لکھا گیا تھا جس کسی بنکر کو بسلسلہ روزگار ولایت جانا ہے وہ اپنا نام لکھوا دے، تنخواہ معقول دی جائے گی، وہاں بنکروں کی ضرورت ہے۔ یہ غریب بنکر سیدھے سادھے نور باف ان کی اس چال بازی کو نہ سمجھ سکا اور نیک روزی کمانے کی لالچ میں تقریباً 3000 بنکر، جیسا کہ ہم اپنے بزرگ سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لالچ میں تقریباً 3000 بنکر، جیسا کہ ہم اپنے بزرگ کو سنتے چلے آ رہے ہیں، پانی کے جہاز سے برطانیہ روانہ کر دیا۔ جب یہ جہاز سمندر میں لنگر انداز ہوا تو ان تمام انگریز افسران نے جہاز کا پرزہ نکال کر سب کو غرق سمندر کر دیا۔ جب اس جرم سے بھی ان کی پیاس نہ بجھی تو گورنمنٹ برطانیہ نے کلکتے میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا، جس کے وائس چانسلر جان گلکرائسٹ تھے۔ ان کی ماتحتی میں ایسے ماسٹر رکھے گئے اور ان کو ہدایت کی گئی کہ نور بافوں یعنی بنکروں کے لیے ایسے قصے، کہانیاں اور حکایتیں، چٹکلے، من گھڑت کہانیاں گھڑی جائیں تاکہ یہ لوگ احساس کمتری کا شکار بن جائیں، یعنی ان پر نفسیاتی حملے کیے جائیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو لوگ حکومت کے غلام و اعلی کار تھے، سرکاری اعلان کے ذریعے لفظ نور باف کے بجائے لفظ جولاہے یا جولاہا کے کہا جانے کی تلقین بھی کی گئی، کیونکہ ہندوستان میں زمانہ قدیم سے سنسکرت زبان کا دورہ رہا ہے۔ دور مغلیہ سے پہلے تمام کپڑا بننے والے بنکروں کو جولاہا کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ لفظ سنسکرت ہے، یعنی جل مانے پھندا اور ہا بنانے والا کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی کپڑا بنا پھندے بنائے تیار نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے برخلاف انگریزی حکومت سے پہلے جب
मुग़ल हिंदुस्तान में आए और उन्होंने मुस्लिम हुकूमतें कायम की, तो उन्होंने मुस्लिम बुनकरों के लफ्ज़ नूर बाप का लक़ब दिया, क्योंकि फ़ारसी ज़बान में हर बुनकर को लफ्ज़ नूर बाप के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन मुग़लिया हुकूमत के ज़वाल के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत में लफ्ज़ जुलाहा तमाम बुनकरों के लिए, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया, जो आज तक हिंदी तहजीब में चला आ रहा है। उर्दू ज़बान में जाहिरों की अक्सरियत को जोहला कहा जाता है और कपड़ा बुनने वालों को हिंदी संस्कृत ज़बान में जोलाहा कहा जाता है। ये दोनों लफ्ज़ जोहला, जहूला, जुलाहा एक दूसरे को मुमासलत करता है, यानी एक दूसरे की मिसाल है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मक़बूजा हुकूमत के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत में हिंदुस्तानी बुनकर के लिए लफ्ज़ जुलाहा आम हो गया और पुनः लफ्ज़ नूर बाप, जो कि फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, हिंदुस्तान से फ़ारसी ज़बान ख़त्म होने के साथ साथ ख़त्म हो गया था। अंग्रेज़ी हुकूमत के जौर सितम से मुतासिर होकर मौलाना शमसुल उलमा जनाब हाजी पानीपती ने अपने मुसद्दस हाली में अंग्रेज़ी हुकूमत के जौर सितम का नक्शा इस तरह खींचा है। नागहां जौर तज़ल्लुम का उठा एक तूफ़ान, अक़विया हाथ ज़ईफ़ों पे लगे करने रवां, तेज़ दंदा हुए जंगल में ग़ज़ालों पे पिलंग, मुँह खोले हुए रहते थे दरिया में भी नहंग, पेशाओ हिरफा को इजलाफ का शेवा समझे, नंगे खिदमत को शराफत का तकाज़ा समझे। अरे ऐब लगने लगे नज्जारी हद्दादी को, बेचते फिरने लगे जौहरे आज़ादी को, पेशा समझे थे जिसे हो गई वो ज़ात अपनी, जा पड़ी गैर के हाथों में हर एक बात अपनी। मोहतरम हज़रात, जहाँ तक अंग्रेज़ों के जुल्म सितम की दास्तान है वो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ कौम मिल्लत के रखवाले हिंदुस्तानी दानिश्वर। क्या ऐसा भी हुआ है कि हिंदू मतलब अंग्रेज़ी मुजालिमों के अलावा हमारे कौमी रहबरों ने भी बहुत मुलाजिम किए हैं, और लगता है अभी भी कर रहे हैं। हमारे बहुत से कौमी रहबर मोमिन अंसार या अंसारियों पर बहुत सारे मुलाजिम करते आ रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? राय यह है दोस्तों और साथियों, मेरे मोहतरम हज़रात भाइयों, जहाँ तक अंग्रेज़ों के जुल्म सितम की दास्तान है वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ कौम मिल्लत के रखवाले हिंदुस्तानी दानिश्वर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले मुफक्किर मिल्लत के हज़रात भी नूर बापों यानी कपड़ा बुनने वालों के पीछे पड़े हुए थे, और अंग्रेज़ी हुकूमत को खुश करने के लिए अपनी किताब असबाब बगावत हिंद में लिखते हैं कि इन बज़ात जुड़ाहों ने 1857 की बगावत में अंग्रेज़ों का साथ न देकर कांग्रेस पार्टी के आंदोलन में कांग्रेसियों का साथ दिया। जुलाहों का तार तो बिल्कुल टूट ही चुका था, जबकि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों को मुल्क से निकालना था, क्योंकि जो कि हक़ बजानिब था। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कामयाब न हो सकी और रफ्ता रफ्ता अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पर कामयाब हो गए। कामयाबी के बाद अंग्रेज़ों ने जुल्म से समझाए वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। उलमाए कराम के क़त्ल-ए-आम, हिंदुस्तानी आज़ादी के मतवालों को फांसी, काले पानी की सज़ाएँ, जलियांवाला बाग में बेशुमार हिंदुस्तानियों का जनरल डायर के एक ऊपर क़त्ल-ए-आम, हज़ारों जानें कुर्बान करने के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पंच मोबाइल के हिंदुस्तान को आज़ादी नसीब हुई। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद नया दौर शुरू हुआ। हिंदुस्तान में नया आइन बनाकर लागू किया गया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को उसकी ज़िंदगी हर ज़रूरत का ख्याल किया गया, जिसमें मजहबी आज़ादी हो या दुनियावी ज़रूरियात हों। शहरी और देहाती तरक्की के लिए 5 साला प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, ताकि इन योजनाओं के ज़रिए देश की तमाम जनता को उसका पूरा फ़ायदा पहुंच सके। ब्रिटिश हुकूमत में सबसे बड़ा नुकसान करघा उद्योग, कपड़े की सनत को पहुंचाया था। लिहाजा बुनकरों यानी नूर बापों की हालत सुधारने के लिए जगह जगह गांधी आश्रम खोले गए।
कोऑपरेटिव करगा सोसाइटियाँ, उद्योग, दारुल सनात सोसाइटियाँ खोली गईं ताकि कपड़े की सनत को फरोग हासिल हो और इन गरीब बुनकरों यानी नूर बाबों की हालत बेहतर बने। इस तरह दूसरी सनतों को भी फ़रोग़ दिया गया। मोहतरम हज़रात, देश में टेक्नोलॉजी की ज़बरदस्त कमी थी। बाहरी देशों से तालमेल में पैदा करके नई नई टेक्नोलॉजियाँ हासिल की गईं और बड़े बड़े मराकज़ कायम किए गए। ITI सेंटर कायम किए गए ताकि देश के नागरिक इल्म हासिल करके देश की तरक्की में साथ दें। जबरिया तालीम कायम करके स्कूल खोले गए ताकि देश का कोई भी नागरिक जाहिल न रह जाए और गरीब लड़कों के लिए छात्रवृत्ति यानी वज़ाइफ से नवाजा गया। मोहतरम हज़रात, खेती बाड़ी की काश्त यानी पैदावार का माकूल निज़ाम किया गया ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा गल्ला पैदा कर सके। जगह जगह ट्यूबवेल, नहरें और डैम बनाए गए। बाहरी दुश्मनों से हिफाजत के लिए साइंसी शोबे खोले गए ताकि एटम बम मिसाइल तैयार किए जाएँ। हर मैदान में कामयाबी हासिल की गई। समाजी मैदान में हर शहरी को बराबरी का हक देने के लिए छूत-छात को दूर करने के लिए कानून बनाए गए। ज़िंदगी के हर मरहले में कोशिश करके जनता के हालात को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई जो आज तक हमारे सामने है। मोहतरम हज़रात, अब जबकि 1914 से बीजेपी हुकूमत जनाब नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में आई है, देश तरक्की के मैदान में भी बराबर आगे बढ़ा है। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान से बाहर की हुकूमतों से तालमेल बढ़ाकर देश को कोई अच्छी राह दिखाने में जुस्तजू में लगे हुए। टच मोबाइल के ज़रिए बिजनेस को फ़रोग़ दिया जा रहा है। तालीम मैदान में देश के नागरिक जब बहुत कुछ मोबाइल के ज़रिए सीख रहे हैं, क्योंकि स्कूल ना जाकर घर की चार दीवारी में भी रहकर सबको देखने और सुनने का मौका मिल रहा है। देश का काला धन निकालने के लिए नई करेंसी चालू कर रहे हैं ताकि काला धन बाहर आने से कभी मंदिर मस्जिद के झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी NRC लागू करके देश के रहने वाले इंसानों को अपने देश से निकालने की जुस्तजू कर रहे हैं ताकि हमारे देश में ज़्यादा खुशहाली आए। कभी कोरोना भयंकर बीमारी से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और उम्दा दवाइयाँ हासिल करके लोगों को बीमारी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान का हर शहरी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार सके। खुदा करे मोदी साहब वज़ीर आज़म हर आरज़ू में कामयाब रहें ताकि हमारे भारत में तरक्की और खुशहाली का दौर हो और इस देश की गंगा जमनी तहज़ीब हमेशा कायम रहे। यही नहीं, देश भर में नई सड़कों जो कि देहातों, ज़िलों, शहरों में फैली हुई हैं, जनता की सहूलियत के लिए और ओवरब्रिज और फ्लाई ब्रिज सड़कें और मेट्रो लाइन का माकूल इंतज़ाम करके देश की जनता को हर सहूलत का इंतज़ाम कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करते हुए अंजाम दे रहे हैं। देश के वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ होता है निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा हिंदुस्तान दुनिया के अच्छे देशों में शुमार किया जाए।